heart is formed from two endocardial tubes. Okay, when they coalesce to form, the fusion is called as heart tube, and heart tube has parts from superior to inferior. Superiorly lies truncus arteriosus. Then after that lies bulbus cordis, and it later forms the inferior part. The inferior most gives rise to sinus venosus. And just above to it, primary atrium is formed, and above that is primary ventricle is formed, which are later responsible for formation of atrium and the ventricles. On the septum के inside the heart when we cut section, हमने देखा था the interventricular septum is present between the two ventricles, and in the atrium portion there are atrioventricular canals. Here in this diagram, tricuspid valve is shown. Is it visible to all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And in Yes, this ma'am. portion we have told you what I told you about it. There is folding. The truncus arteriosus part जो था वो anteriorly folding होती है इसमें, and the inferior most part goes little backward, which later forms atrium. In this diagram, here, this portion it gives a superior folding, and it goes backward this way. Okay, let's do the formation of here atrium and the ventricles. और एक overview. ठीक है? Heart has four chambers. These are the walls, which I told you that tricuspid between right atrium and right ventricle, and bicuspid, or it is also called as Mitral valve. right. Mitral. Three surfaces: the anterior, posterior, and the inferior surface, or the diaphragmatic surface. In diaphragmatic surface, heart lies. ठीक है? और इसकी anatomical position क्या थी? At the apex is little forward and downward. Or in the MI, I have told you that which artery was responsible where that ischemia occurs most commonly left anterior descending. Blockage of this artery is most common cause of myocardial infarction. And today now we are going to study further. The cardiovascular system comprises of basically cardia, that is heart, vascular system, that is vessels. Now, yesterday in the previous lecture we have already know enough about anatomy of heart. Now we are going to study further about the blood vessels, the vascular component, which is responsible for oxygen transport, the nutrients and the toxic products it removes out. Okay, all these were the functions. In the blood vessels, we have, what are blood vessels? Okay, it is a closed network of tubules. इसमें क्या क्या आता है? These include arteries, veins, and capillaries. Arteries कैसे होता है? Arteries होती है mainly distributing channel होता है, ठीक है? They originate from the organ and they arteries carry what? Oxygenated blood. आप बच्चों के लिए कुछ प्रेजेंटेशन पे स्क्रीन लगाएंगे All of you listen. All of you listen carefully. Please do not click on the presentation shown on your screen. Okay. ओके मैम ओके मैम Okay. Thank you. Now further, we were studying about blood vessels. So first of all, we are going to study about what arteries. I have already told you the basic difference between arteries and veins.
In the its anatomical position, it has the three layers. Okay, intima, adventitia, and the muscular layer. The muscular layer is responsible for its elasticity, which is present in the arteries but absent in veins. So arteries are the distributing channels. They are thick walled. I have told you anatomically, when you see a cadaver, you can feel its thickness, but in the vein, it is very soft, and its lumen is larger than that of artery. In the arteries, these are thick walled, these are elastic. Okay, क्योंकि elastic होते हैं, that's why क्या stretchability ज़्यादा होती है, elastic recoil होती है इसमें. Okay, and these are comprises of which type of muscles? Circular smooth muscles. Whereas the capillaries जो होते हैं, they are like microscopic vessels. They are very minute and fenestration से बनते हैं. Okay, these are one cell thick, very in macrons. और ये जो मेजर नेटवर्क होता है, इट्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. वेन्स आर व्हाट? दे आर ड्रेनिंग चैनल्स. ऑर्गन से क्या लेके आते हैं वो लोग? सारा जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, दे ड्रेन आउट फ्रॉम देयर. This is the structure. The outermost layer. This is tunica adventitia, the outer layer. And then okay, Amarnath. I didn't mention his name. अमरनाथ के बारे में प्रेजेंट नहीं कर रहे हो. Amarnath, do not click on the screen, please. Do not click on the presentation. Okay, he is doing. Okay, I'll let him go. Amarnath Yadav, are you there? Kindly respond. Okay. No one is supposed to click on the presentation, please. Now we further move on to the structure of blood vessels. What was the outermost layer? Kindly respond. Sorry, Yeah. intima, tunica intima. Adventitia. And in between, media. And the innermost is intima layer. In the media layer is absent veins. Media or the muscular support जो होता है, that is absent in veins. Veins इसीलिए collapsible होती हैं. They have valves. क्योंकि उनकी elasticity इतनी और वो thick भी नहीं होते हैं. They used to easily collapse. So valves are present to prevent the backflow of blood. There is a classification of blood vessels. Okay, blood vessels के जैसे से functions हैं. On the basis of their functions, they are distributed as it is. The conducting ones, conducting vessels, distributing vessels, resistance vessels, exchange vessels in the glomerular area, in the kidney nephron part. There is exchange of nutrients occurs. There are exchange vessels, capacitance vessels, reservoirs on the basis of their work. Here now we separately study about arteries. What are arteries? Here you can see the cut section. In the cut section, it is shown the outermost layer is tunica adventitia. It comprises of collagen fibers. Okay, and then intima layer, the innermost layer, it lies the directly exposes to the lumen of the vessel, and in between this portion you can see this is the media. मैम स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है. What is clear? क्लियर नहीं है मैम. But आपका network नहीं, issues होगा Ma'am, because rest of the people can see it clearly. Yes, ma'am. Clear. Okay. So kindly check on your network, please.
In the middle layer, this one is the tunica media. I have told you that this layer is absent in the veins. That's why veins are collapsible. So to prevent their collapsibility, walls are present in veins. Blood vessels carry blood away from heart are arteries. Okay, जो oxygenated blood होता है that is carried by them, and all the arteries carry oxygenated blood except which artery? Which artery carry deoxygenated blood? Pulmonary. Pulmonary artery. How many pulmonary veins open into the left atrium? How many pulmonary veins open into the left atrium? I've shown you the posterior view of the heart. Ma'am, four veins. Four. Yeah, right. I've shown you in the diagram 4 pulmonary veins were opening into the left atrium. Here, these vessels, what are the functions? They carry blood in high in oxygen. That means arteries carry oxygenated blood. Okay. Arteries are accompanied by veins and nerves. They are सब अलग-अलग नहीं दिखते हैं. Cadaver में, you see them mixed channels. It's very difficult to identify when you see them. Okay. By touching them, we differentiate them because जब हम arteries को भी compress करते हैं, there is elastic movement, so there is little thickness is present, and in the veins they are very collapsible with the larger vein. You can easily identify them. So arteries comprised by vein and nerves. Lumen of arteries is very narrow. There are no walls. Okay, this is the difference between. There are walls in veins and no walls in arteries. And they further narrow vessels branching होती चली जाती है. They forms capillary networks. Now you can see here. These are arteries and here the veins, and further dividing into venules. Okay. These arterial capillaries for the smaller branches. The smallest blood vessels are capillaries and they connect the arteries and veins. यहाँ पे आप लोग देख रहे हो this portion. They are connecting between arteries and veins. यहाँ पर क्या होता है? Exchange of nutrients और gases होता है यहाँ से. They get oxygenated and nutrients are the supply and their extension of vessels and they carry it to the organ. Now types of capillaries are also like continuous होते हैं, fenestrated. Continuous like they are in direct connection with the जैसे fenestrated का mean है they are porous, they are small holes in them to exchange. Okay, these are fenestrated ones are present in the larger organs like pancreas, endocrine glands, small intestine, choroid plexus, and ciliary processes. And continuous one are present in the lungs, smooth muscles, connective tissues. Okay. Now the sinusoids. These sinusoids is the liver. If you have already read about the liver and physiology, you must have known about sinusoids. Sinusoids क्या होते हैं? Large irregular spaces होते हैं, ठीक है? These are large. जैसे हमने पढ़ा था, the capillaries are 1 cell thick. These are little bit larger spaces, and these are present mainly in the liver, spleen, bone marrow, suprarenal and parathyroid glands. And veins. In the veins, blood vessels that carry blood back to the heart are called as veins. कहाँ से आते हैं? नीचे से venous pooling पढ़ा होगा आप लोगों ने. सारा जो inferior part का blood होता है below the diaphragm, वो सारा जब ऊपर लेके आना होता है, that deoxygenated blood carried by veins and finally come to the inferior vena cava. They all drain into the inferior vena cava, and inferior vena cava drain into the right atrium. Okay. Veins are the blood vessels that carry blood back to the heart and are called as veins. The one have ये इसमें walls होते हैं ताकि अब नीचे क्या होता है? Gravity होती है. अब gravity के against काम करना है, ठीक है? तो फिर अब blood ऊपर जा रहा है pressure से, okay, towards the heart. अब नीचे से gravity लग रही है, तो कहीं वो blood वापस से नीचे cooling ना हो जाए, blood वहाँ जमा ना हो जाए, तो ये बीच में क्या पड़ा है? Present है यहाँ पे walls होते हैं ताकि ये प्रेशर से मेंटेन्ड होते हैं. नीचे ग्रेविटी एक्ट करे तो ये वेन्स बंद रहते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो को. इन वेन्स में प्रॉब्लम हो जाती है अगर, तो फिर क्या, ये जो वॉल्स अगर खराब हो जाएंगे तो ये ब्लड जो दोबारा से वैसे में नीचे बढ़ जाएगा ऐसे.
इसको क्या बोलते हैं, वेरिकोज वेन। अगर ब्लड फिल्ड रह जाता है वेरिकोज वेन पे, जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग वर्कर्स जो होते हैं वो काफी देर तक अगर खड़े रहते हैं और बहुत सालों तक ऐसे करते हैं, जो भी ऐसे प्रोफेशन में है, जैसे कि ब्यूटिशियंस हो गए, ठीक है, ब्यूटी पार्लर में जो लोग होते हैं दे वर्क फॉर आवर्स, वो खड़े रहते हैं। सर्जन्स होते हैं, दे आर मोर एक्सपोज टू दीज एनोमलीज, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म पे बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग काम करना रहता है। तो क्या होता है उसमें, इनके जो वॉल्स हैं इन पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा एक्ट करती है कॉन्टिन्यूसली। सो दीज वॉल्स जो होते हैं, इधर इसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वॉल्स खराब हो जाए, और लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े होने पे अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हैं, एंड दीज वॉल्स दे गिव स्पेसेस, तो वेनस फूलिंग हो जाती है, तो ब्लड क्या होता है लोअर लिम्स में आपके बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग रहेंगे तो फिर पेन के बाद क्या होगा, अल्सरेशन हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। Blood vessels that carry blood back to heart are called as veins. They have one-way wall which prevent the backflow from flowing backward. ठीक है, ये इसको प्रिवेंट करता है। और इसमें क्या होगा, क्योंकि ये ऑर्गन से जा रहा है लेफ्ट राइट एट्रियम में, तो ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन को कंटेंट होता है। ओके, veins without walls. There are few exceptions also. Okay, I have told you that veins have walls to prevent the backflow, but there are few veins which are without wall. Veins, renal veins, uterine, ovarian, like testicular veins have walls. Facial walls, pulmonary walls, umbilical vessels, and initially veins, portal veins, जिनका lumen बहुत ही narrow है, less than 2 mm of size. Okay. Now next veins के बारे में बताया गया। I have already told you this that veins are very thin walled, बहुत ही इनका lumen जो होता है larger होता है, they are very thin, and dead spaces, और जो veins होते हैं उनके आसपास डेड स्पेस होता है, जबकि आर्टरी में पढ़ा था कंटिन्यूएशन में होता है, सर उसके आसपास अलॉन्ग में क्या क्या रन करा होता है, नर्व्स भी होती हैं और कैपिलरी चैनल्स होते हैं। वेन्स की भी 3 टाइप हैं, लार्जर वेन्स होती हैं जैसे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, दीज आर लार्जर वेन्स, स्मॉल एंड मीडियम। देन वेन्स आर रिस्पांसिबल फॉर वहां से ब्लड टुवर्ड्स द राइट एट्रियम आई। देन पल्सेशंस ऑफ द आर्टरीज, जो आर्टरीज होती है इंडिविजुअली हर एक आर्टरी में क्या होता है, पल्सेशंस होती है, ठीक है, और उन पल्सेशंस को आप फील भी करते हैं जब कुछ एनोमलीज होती हैं, और या फिर देयर आर सम प्रॉब्लम्स, फिर उसमें क्या होता है, हम वो पल्सेशंस को, जैसे आपने देखा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होती है जुगुलर वेनस प्रेशर, अब उसके पल्सेशंस जब बहुत राइज होता है कार्डियक फेलियर्स में, सीएचएफ में क्या होता है, वहाँ पे आप उन पल्सेशंस को देख सकते हो। और आर्टरीज में भी पल्सेशंस होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी दे एक्ट एज वीक फैक्टर, और ग्रेविटी तो यही है जो कि वेनस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए आपके पास क्या होता है, देयर वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। सर्कुलेशन ना, इनको बेसिकली जो मेजर सर्कुलेशन है वो क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। कोरोनरी जो कि हार्ट का, पल्मोनरी एज द नेम डिफाइंस फ्लो बिटवीन द हार्ट एंड द लंग, एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन जो कि पूरी बॉडी और हार्ट के बीच में। और फीटल सर्कुलेशन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट, मैंने पेटेंट एक्सेस आर्टरीरोसिस के बारे में थोड़ा सा बताया था, फोरामेन ओपेन बताया था,
कि when the fetus is there in the intrauterine life, एक कनेक्शन होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, और जैसे बर्थ होता है दैट टाइम फिजियोलॉजिकली वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि लंग्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं, लंग्स काम करने लगते हैं, और फिर 21 डेज के आफ्टर एनाटॉमिकली फोरामेनोइड बंद हो जाता है अपने आप से। और जो नॉर्मल इंटरमिक्सिंग होती है जैसे कि हम लोगों में होती है कि इंटरमिक्सिंग बंद होता है, सेंटर से मिलता है सारा सर्कुलेशन उसका, वही मेंटेन करता है। और जो फीटस होता है उसमें लंग्स जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं, जो सारा उसका ऑक्सीजन है न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड गोस थ्रू प्लेसेंटा। तो ये हमने एक काफी बेसिक पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ताकि सबको समझ में आए कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे वो व्हाट आर इट्स फंक्शन हम पढ़ते गए हैं, इस सब के फंक्शंस क्या क्या हैं। कैन एनीवन डिफाइन द फंक्शंस? Transport of CO2 and O2. Transport and hormone. कितने काम ढंग से पढ़ रहे हैं इसको? जो न्यूट्रिएंट्स हैं वेसल्स में आप लेते हो, यू ऑर्गन्स हाउ दे रीच, हर ऑर्गन को प्रॉपर सप्लाई सारे न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं? थ्रू दीज चैनल्स, वेनस और दीज जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे उस ऑर्गन से बाहर आते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आर्टरीज, वेन्स, इन सब के बारे में इसलिए तो बढ़ रहे हैं क्योंकि जो हर एक ऑर्गन जो हमारी है, और फॉर देयर सर्वाइवल व्हाट दे रिक्वायर, दे रिक्वायर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। वो उस तक कैसे पहुंचते हैं? आर्टरीज जो भी उसे कैरी करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन, और जो टॉक्सिक मटेरियल एक सेल जो निकाल रहा है ऑर्गन, व्हाट इट इज गोइंग टू, इट्स गोइंग आउट टू एक्सचेंज, इम्यूनिटी, ब्लड वेसल्स, इन सबके थ्रू। और सबसे मेजर जो है वो क्या है? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ अ सेल। और ऐसे तो इधर हार्ट क्या होता है? इट एक्ट एज अ पंप, ओके, जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स और वेस्ट उनको लेके आता है एक साइड से। द राइट एट्रियम, उसमें क्या होता है हमने कल बेसिकली पढ़ा था, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ओके, वास्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। सारा जो ब्लड है लोअर लिम्ब से बिलो द डायफ्राम, जो लोअर लिम्ब का सारा ब्लड आता है, इट कम्स थ्रू इंफीरियर वेना केवा। और जो हमारा सर्वाइकल रीजन है, ऊपर ब्रेन है, ऊपर से जितना भी ब्लड ड्रेन होता है, इट कम्स टू सुपीरियर वेना केवा। ये दोनों ओपन कहाँ होते हैं? दोनों ओपन होते हैं आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। सारा ब्लड वहाँ पोर आउट होता है। फिर वहां से फर्दर आगे कैसे जाता है? इट गोज थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन होते हैं, वहां से ब्लड आता है सारा राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? इट नीड्स टू गेट ऑक्सीजन, चाहिए उसको, तो वहां से पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी देम टू द बोथ द लंग्स, और फिर लंग से जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा देन इट विल कम टू बैक अगेन टू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से देन bicuspid walls will open and it will go to the left ventricle, and from there the अभी हम ब्रीफ इसका पढ़ेंगे हम, क्लिनिकल एस्पेक्ट अप्लाइड, ठीक है। क्योंकि देयर आर वेरियस फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या डिजीज और डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, कैन एनीवन डिफाइन ब्लड प्रेशर?
सामान्य अवस्था से अगर ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए ब्लड प्रेशर, उसी को बोलेंगे प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर। अगर Pressure दाब exerted by flowing blood on the elastic walls of arteries. Blood flowing on the Pressure exerted by the flowing blood on the walls of arteries. walls and arteries. Walls of arteries. Walls होते हैं arteries में। Elastic wall. Flowing in to maintain the flow, there is a pressure difference होता है किसी चीज के बीच में, तभी तो फिर मतलब एक बढ़ जाता है। अब जैसे हमने चारों चेम्बर्स पढ़े इन द फर्दर वन, वी विल आल्सो स्टडी कि हर चेम्बर का अलग अलग प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे कि राइट एट्रियम का प्रेशर है, राइट एट्रियम में सबसे कम प्रेशर होता है, तभी सारा ब्लड जो है वहां ड्रेन होता है। जो आपका लेफ्ट एट्रियम 0 टू प्रेशर होता है, और लेफ्ट में होता है जो राइट वेंट्रिकल होता है। तभी जब हम बोलते हैं तो जब अभी हम पढ़ोगे इसकी भी मेजर है, और बाकी तो हम सबको पता है किससे मेजर किया जाता है। मैनोमीटर का नाम, मेजरिंग मशीन का नाम है मैनोमीटर। कितना? 90 to 120 90 टू मैम 120 120 मैम। 120 मैम 90/120 millimeter of 120. mercury। 120 ऑब्लिक start at 120 मैम 90/120 millimeter of mercury। पहले क्या बोलते हैं? 80. फर्स्ट 120 से कम। अब जो नई गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग लेस देन 120 to 80 mm ऑफ HG नॉर्मल मानते हैं, ओके। और हाइपरटेंसिव जो एग्जैक्ट डिफाइन करते हैं कब करते हैं? 140 to 90 mm ऑफ HG से ज्यादा होता है इसका, और वो भी कॉन्सिक्यूटिवली, ऐसे नहीं कि मतलब एक बार आ गया कभी हफ्ते में, तो फिर भी डिफाइन इट एज हाइपरटेंसिव पेशेंट। समटाइम्स क्योंकि क्या है, ब्लड प्रेशर जो है वो आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज से भी राइज होता है, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स हो और 2 दिन के लिए लगातार आ रही हो, अगर तब भी रेज आ रहा है किसी का ब्लड प्रेशर, तब फिर हम उसको कंसिडर करेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारी, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा सडन स्टीप राइज ब्लड प्रेशर में लेड टू हेमरेज। हेमरेज भी क्या, आर्टेरियल या फिर वेनस ब्लीडिंग हो सकती है। स्ट्रोक, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट आप पढ़ोगे, ठीक है। इन दैट वन सेरेब्रल वेसल्स जो होती हैं ड्यू टू सडन स्टीप राइज इन द प्रेशर ऑफ द ब्रेक, ठीक है, हेमरेज हो जाएगा और क्लॉट, and that pressure vessel creates a clot and that clot compresses उस पर्टिकुलर एरिया की सप्लाई बंद हो जाएगी, और आसपास के वो नर्व्स वेसल्स को भी कंप्रेस करेगा। तो जिस एरिया को, जिससे ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो मोटा मोटा सबको पता है दिस इज द फ्रंटल एरिया, देन पैराइटल, देन टेम्पोरल एंड देन ऑक्सीपिटल रीजन। तो वहां पे क्या हो जाएगा, उस एरिया का फंक्शंस, फिर हर एरिया जो होता है दैट एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस, वो फंक्शंस उस एरिया के चले जाएंगे। देन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में ब्रीफ में आप लोग क्या जानते हो? Have you ever heard of wall of artery? Due to deposition of calcium. मैम thickening and hardening of wall of अच्छा, artery। there are 2 terms, arteriosclerosis होता है एक, और एक एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। Do you know the difference? No मैम। यस मैम। मैम इसमें जो ब्लड मसल्स होंगी उनको इफेक्ट करती है।
यस मैम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो होता है लिपिड का वो होने लगता है, और इसमें जो होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल। ओके, शॉर्ट आपने कैल्शियम कमी होती है। आर्टीरियल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो कैल्शियम हाँ, वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जो कैल्शियम प्लाक बनता है वो किसमें बनता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में बनता है। और वो जब पूरा ल्यूमन को कवर कर लेता है तो क्या हो जाता है, हार्ट अटैक, क्योंकि ब्लड सप्लाई आगे जाएगी नहीं। हार्ट अटैक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। कैल्शियम प्लाक्स बनते हैं। और आर्टीरियल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, द वेसल्स, जो आर्टीरियल वेसल्स होती हैं, दे गॉट स्क्लेरोज। ठीक है। एन्यूरिज्म को क्या होता है, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एन्यूरिज्म? Whenever a vessel dilates, ठीक है, there are various reasons for it, maybe the pressure or there's a pathology, plaque or some inflammation. So aneurysm is that thing of a vessel, blood vessel. और जैसे ब्रेन है, ओके, you might have heard about migraine, ठीक है। माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन सर दर्द का। क्या होता है उसमें? जैसे माइग्रेन है, हर किसी को लगता है कि भाई कॉन्ट्रैक्शन होने लगता होगा, बट देयर इज डायलेशन ऑफ सेरेब्रल वेसल्स, इसमें पेन होता है। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हम पढ़ते हैं, देयर आर वेरियस पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल टर्म्स। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जो कोरोनरी वेसल्स हमने पढ़ी, ठीक है, और उसमें हमने बताया भी कि वी हैव ऑलरेडी रेड की राइट कोरोनरी आर्टरी वेसल ब्लॉकेज होता है, और या फिर उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, प्लाक बन गया, तो उसमें कोई पैथोलॉजी है दैट द राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ब्रांचेस, आई हैव नेम्ड 2 branches of right coronary artery and 3 of the left coronary artery. Does anyone remember? Right coronary artery में कौन से ब्रांच थे? दो मैंने डायग्राम भी दिखाया था तुम लोगों को। ये वाला डायग्राम याद है? राइट कोरोनरी आर्टरी, Yes, ma'am. ये मार्जिनल आर्टरी दिखाई थी मैंने, और ये वाला पोस्टीरियर भी था, इसमें सब ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी थी, और ये पोस्टीरियर, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में पोस्टीरियर साइड पे इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी थी। Right marginal or posterior interventricular branches of right coronary artery. And left coronary artery में क्या था? Left anterior descending circumflex branch of left marginal. ठीक है, marginal left marginal this side. Then ये सब आप फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, एंड इन द लेटर पार्ट्स मेडिसिन में आप इसको क्लियरली पढ़ सकते हो। कंजेस्टिव हार्ट के लिए कंजेस्टिव वर्ड से समझ में आ रहा है कि मतलब कुछ कंजेशन हो गया कहीं पर, जैसे नेजल कंजेशन सबने सुना होगा, व्हेन द वेसल्स में ऐसा हो जाता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाती है, देन देयर आर पैथोलॉजीज ऑफ ब्लड, उसके फ्लो में इश्यूज होते हैं। इस वजह से एनीमिया सबसे कॉमन है। अपने इंडिया में कौन सा टाइप की एनीमिया सबसे कॉमन है, पता है किसी को? विच टाइप? कौन सी? अच्छा, कब बोलते हैं एनीमिया? हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए? Less than 12.5. WHO के Ma'am, less than 11. 11 40 to 16 male. 11 तो कम नहीं है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर एनीमिया पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा, नॉर्मली देखो गर्ल्स में जो है 11 to 13 बोलते हैं, बॉयज में 14 to 15।
रैम्प और डेसिलेटर। हीमोफीलिया क्या होता है हीमोफीलिया में? हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्लॉट प्रॉपर्ली। बहुत सर्टेन लैक्स में राइट होता है। नॉर्मल ब्लड का डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना होता है? 3000 से 4000। ठीक है, व्हेन इट राइजेस टू लैक्स, इतना इन्फ्लेम्ड हो गया, कितने लैक्स में बढ़ गया, तो फिर इट लाइक टू ल्यूकीमिया। यहाँ पर बस एक ब्रीफ ओवरव्यू, आप जब इसके बारे में पढ़ोगे डीपली, देयर आर सेल्स, फिर आप चले जाओगे बेसिक लेवल्स पे। तो जब दे आर डेवलपिंग, उस टाइम पे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, दे आर डेफिसिट ऑफ दैट फैक्टर्स, इस वजह से होता है। ठीक है, हीमोफीलिया के भी दो टाइप्स हैं, ए बी और सी भी होता है। तो हमने ये ओवरव्यू मैं बहुत ही बेसिक पढ़ा है, each and everyone स्लाइड ओपन कर लीजिए। Excuse me, ma'am. Thank you everyone for being patient and understanding the class. So we finish up the cardiovascular system. और इसका एक बार अच्छे से बुक से जरूर रीडिंग करें और एनाटॉमी के हिसाब से जो इसमें सर्कुलेशंस है, ब्लड सप्लाई है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमें हमेशा काम टर्म्स and people like और basic difference between arteries, these all you should know, okay? कितना देखो कितना लिखे नीचे Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yeah. बाइक सेमी ल्यूनर और पे क्या डिफरेंट है मैम? Hello?